Hello everyone, this is your Bandini Sharma. Welcome back to my channel VMB Tutorial. So in last session we have discussed first two questions of exercise 8.2 and in today's session we are going to discuss next further question of same exercise. Okay, so let's start today's session. So question number 3 is ABCD is a rectangle and P, Q, R and S are midpoints of the sides AB, BC, CD and AD respectively. Show that the quadrilateral PQRS is a rhombus. Okay, so here in this question you have given a rectangle ABCD and we know that in rectangle opposite sides are equal and all the four angles are right angles. Okay, so this much we know about rectangle, and PQRS are the midpoints of respective sides, means P is the midpoint of side AB and Q is the midpoint of side BC and R is the midpoint of side CD and S is the midpoint of side AD. ओके, तो इस क्वेश्चन को देखकर आपको तुरंत आइडिया लग जाना चाहिए कि यहाँ पर साइड्स के मिड पॉइंट्स दे रखे हैं. ओके, और जब आप इस रेक्टेंगल का एक भी डायगोनल ड्रॉ करते हैं, मीन्स दोनों में से कोई भी डायगोनल ड्रॉ करते हैं, तो डायगोनल इस रेक्टेंगल को टू ट्राइंगल्स में डिवाइड कर रहा है. आप देख सकते हैं AC डिवाइडिंग दिस रेक्टेंगल ABCD इन टू ट्राइंगल्स. वन इज ADC and second one is ABC. Okay, now see, when we consider these two triangles, so these CD and AD are the sides of this triangle. Similarly AB and BC are the sides of this triangle ABC. Okay, and you have given the midpoints of all the four sides. Okay, since these two sides and these two sides are the parts of triangle, so these midpoints will be considered as the midpoint of sides of triangle. Okay, and in a triangle we can use midpoint theorem and converse of it. Okay, so let's see which one we will use here. So see, what we have to prove, if we join these points, midpoints, we are getting a quadrilateral PQRS that we have to show as a rhombus. Okay, हमें यहाँ पर ये जो क्वाड्रिलेटरल मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर मिल रहा है, तो उस क्वाड्रिलेटरल को हमें रोम्बस शो करना है. तो रोम्बस के शो करने के लिए हमें क्या शो करना पड़ेगा यहाँ पर, अगर हम इस क्वाड्रिलेटरल PQRS की चारों साइड्स को इक्वल कर दें तो आपका रोम्बस हो जाएगा. ओके, सो लेट्स ट्राई इट. सी, इन ट्राइंगल ADC S and R are midpoints of AD and CD respectively. ओके, इस ट्राइंगल ADC में S AD का मिड पॉइंट है और R CD का मिड पॉइंट है. ओके, सो वाई यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, in a triangle, if we join the midpoints of two sides, so the line segment joining these midpoints is parallel to the third side and half of it. ओके, तो इसका मतलब अगर S और R मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो SR मिल रहा है. SR लाइन सेगमेंट इस थर्ड साइड, इस ट्राइंगल ADC की जो थर्ड साइड है AC, उसके क्या पैरेलल होगा और उसका हाफ होगा. सो वी कैन राइट हियर SR is parallel to AC and SR is half of AC. Name this as equation number 1. Okay, now consider triangle ABC. So in triangle ABC, P and Q are midpoints of side AB and BC respectively. AB का भी मिड पॉइंट है, BC का Q मिड पॉइंट है. तो इन मिड पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो लाइन सेगमेंट PQ मिल रहा है. तो इस ट्राइंगल ABC के अगर दो साइड के मिड पॉइंट्स को आप ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के पैरेलल होता है एंड हाफ होता है. तो यही हमें अप्लाई करना है. सो वाई using
मिड पॉइंट थ्योरम। PQ is parallel to AC and PQ is equal to half of AC. Name this as equation number 2. Now compare these two. Since SR is parallel to AC as well as PQ parallel to AC, that means these two sides will also be parallel to each other. Okay, so write from 1 and 2. PQ is parallel to SR and PQ is half of AC. SR is also half of AC, means these halves will also be equal to each other. So PQ is equals to SR. Okay, so what we have show here, PQ is parallel to SR. रोम्बस के लिए हमें चारों साइड्स क्या इक्वल भी चाहिए, इक्वल और पैरेललोग्राम तो होता ही है रोम्बस, तो यहाँ से हमने ऑपोजिट साइड तो पैरेलल कर दी, मीन्स PQ इज इक्वल्स टू RS. ओके, अब हमें क्या करना है कि अगर हम इन एडजेसेंट साइड्स को इक्वल कर दें तो ये चारों साइड्स आपस में इक्वल हो जाएंगी. तो उसके लिए करना है क्या, देखिए सी, अगर हम इन दो ट्राइंगल्स की बात करें, ट्राइंगल PBQ एंड ट्राइंगल C, these two triangles should be considered. Okay, PBQ एंड QCR. तो देखिए ये जो एंगल है वो क्या है, राइट एंगल. एंगल C एंड एंगल B आर राइट एंगल, सो दे विल इक्वल. ओके, एंड सिंस Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, दैट मीन्स QB इज इक्वल्स टू QC. ओके, and we know that in rectangle opposite sides are equal, it means AB is equals to CD. AB CD के इक्वल है तो उनके हाफ, और ये क्या है P और R क्या है, उनके मिड पॉइंट्स है तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे. तो इसका मतलब BP इज इक्वल्स टू CR. तो देखिए साइड, एंगल एंड साइड. सो बाय SAS congruency criteria these two triangles will be congruent. So their remaining parts will also be equal. So since QR and QP are the corresponding parts of these two triangles, so by CPCT these two sides will also be equal. तो हमने यहाँ पर congruency की हेल्प से क्या शो कर दिया कि PQ QR के इक्वल है. पहले हमने क्या शो किया है कि PQ SR के इक्वल है, अब PQ किसके, QR के, मीन्स एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल है और ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल है. इसका मतलब चारों साइड्स आपस में इक्वल होंगे. इस तरीके से आपका रोम्बस हो जाएगा. तो देखिए लिखना कैसे, सी, इन ट्राइंगल QCR एंड ट्राइंगल QBP, इन दो ट्राइंगल की बात कर रहे हैं. एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल B 90 डिग्री. ओके, एंड QC इज इक्वल्स टू QB. क्यों, QC QB के इक्वल है. वाई, Q इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ BC. ओके, सेकेंड, सिंस AB इज इक्वल्स टू DC, that means half of them, half of AB is equals to half of DC. So it is implying, it means it is implying half of AB is CR if we take, that is equals to half of DC. So half of AB is equals to half of DC. AB किसके इक्वल है, DC का. तो इनका अगर हाफ लें तो वो भी क्या होगा, इक्वल होगा. तो इसका हाफ क्या है, P और Q R क्या है, मिड पॉइंट्स हैं, तो इनके हाफ क्या हो जाएंगे. तो हाफ ऑफ AB इफ वी टेक PB एंड हाफ ऑफ DC CR. तो देखिए PB और CR क्या है, इन दो ट्राइंगल्स की साइड है. सो एंगल एंड दिस साइड एंड दिस साइड. सो बाय SAS ट्राइंगल
QCR is congruent to triangle QBP by SAS congruency rule। SAS से ये साइड इस साइड की इक्वल है, ये वाली साइड इस साइड की इक्वल है, और ये दोनों एंगल इंक्लूडेड एंगल, ठीक है। सो वी कैन राइट QP और QR is equals to QP by CPCT। Name this as equation number, right, wait, this is equation number 3 and this is equation number 4. So from 3 and 4 we can write what? PQ is equals to QR and QR is equals to RS and RS is equals to PS। ओके, PQ क्या है? SR के भी इक्वल है। PQ हमने यहाँ क्या शो किया? QR के भी इक्वल है। ओके, और QR की ऑपोजिट साइड क्या है? PS, तो वो तो इक्वल है। इसका मतलब चारों साइड्स आपस में इक्वल है। दैट मीन्स वी कैन से PQRS इज अ रोम्बस। ओके, हमने क्या शो कर दिया कि PQRS की चारों साइड्स, एडजेसेंट साइड्स, ऑपोजिट साइड्स आपस में इक्वल है, इसलिए PQRS आपका क्या हो जाएगा? रोम्बस हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB is parallel to DC, BD is a diagonal and E is the midpoint of AB. A line is drawn through E parallel to AB intersecting BC at F. Show that F is the midpoint of BC. Okay? So इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है, और ट्रेपेजियम में आपको पता है कि एक पेयर ऑपोजिट साइड का पैरेलल होता है, तो वो पेयर आपको AB और CD का दे रखा है। AB इज पैरेलल टू CD। ओके, अब E पॉइंट से, E क्या है? AD का मिड पॉइंट है। ओके, मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की जा रही है जो कि क्या है? AB के पैरेलल है, और ये लाइन BC को F पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो अब आपको शो ये करना है कि ये F पॉइंट BC का मिड पॉइंट है। ओके, तो देखिए, अगर इस पॉइंट को हम नेम दे देते हैं सपोज G, दिस इज पॉइंट G। सो व्हाट यू हैव गिवन? You have given here EF is parallel to AB। E से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, जो BC को F पर, तो इस लाइन को अगर हम EF लेते हैं दैट इज पैरेलल टू AB। इट मीन्स EG क्या है? इस लाइन का पार्ट ही है, तो ये भी AB के पैरेलल होगा। सो EG इज पैरेलल टू AB। Okay, now see, since E is the midpoint of AD, E is midpoint of AD. Okay, तो मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि अगर ट्राइंगल, सपोज यहाँ पर ट्राइंगल ABD को हम कंसीडर करते हैं, तो ABD में अगर दो साइड के आपको मिड पॉइंट्स दे रखे हैं और उनको ज्वाइन कराने वाला लाइन सेगमेंट क्या होता है? थर्ड साइड के पैरेलल होता है और उसका हाफ होता है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या गिवन है? अगर इस ट्राइंगल की बात करते हैं ABD की, तो E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD एंड दिस EG इज पैरेलल टू AB। सो दिस इज नथिंग बट द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, किसी ट्राइंगल में अगर आप एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन पास कराते हो, वो लाइन क्या थर्ड साइड के पैरेलल होती है, तो वो सेकंड साइड को बाइसेक्ट करता है। दिस इज द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। सो वी हैव टू यूज द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हियर। व्हाई? बिकॉज E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD एंड दिस EG इज पैरेलल टू AB। ओके, सो अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड पैरेलल टू अदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। तो इसका मतलब यहाँ पर G किसका मिड पॉइंट हो जाएगा? B एंड D का। मीन्स GD किसके? BG के इक्वल हो जाएगा बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। सो वी कैन यूज हियर और Y
converse of midpoint theorem. So while converse of midpoint theorem, we can write EG bisects BC. So by converse of midpoint theorem, we can write EG bisects BD. Okay, इस triangle AB तो हम बात कर रहे हैं ट्राइंगल ABD की, तो यहाँ पर लिख भी लीजिए इन ट्राइंगल ABD. Okay, EF is parallel to AB, that's why EG is parallel to AB. Okay, and you have given E is the midpoint of AD. This you have given. तो यहाँ पर हम क्या मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स यूज कर सकते हैं कि E मिड पॉइंट से पास होने वाली लाइन जो दूसरी साइड के पैरेलल है, तो थर्ड साइड को वो क्या करती है, बाइसेक्ट करती है. इसका मतलब EG बाइसेक्ट्स BD. EG क्या करेगा, BD को बाइसेक्ट कर रहा है. बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है कि G इज मिड पॉइंट ऑफ BD. मिड पॉइंट ऑफ BD. ओके, अब देखिए हमने शो कर दिया कि G क्या है, BD का मिड पॉइंट है. अब हम इस ट्राइंगल को देखेंगे, ट्राइंगल BCD में. तो देखिए EF किसके पैरेलल है, AB. और ट्रैपेजियम है, और ट्रैपेजियम में AB किसके पैरेलल है, CD. इसका मतलब ये EF CD के भी पैरेलल होगी. अगर हम ट्राइंगल BCD कंसीडर करते हैं तो FG क्या है, इस लाइन का ही पार्ट है, तो ये भी किसके, CD के पैरेलल होगी. ठीक है, तो इस ट्राइंगल में G क्या है, BD साइड का मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट से ये पास हो रही है लाइन, और ये लाइन इस थर्ड साइड के क्या है, पैरेलल है. इसका मतलब सेकंड साइड को ये क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी. बाइसेक्ट करेगी इसका मतलब F क्या है, BC का मिड पॉइंट है. यही हमें शो करना है. ठीक है, सो राइट सिंस EF is parallel to AB. Okay, so since EF is parallel to AB and AB is parallel to CD, so it means EF is parallel to CD. Okay, so this implies what, FG is parallel to CD and G is midpoint of BD in triangle BCD. अगर इस ट्राइंगल BCD की हम बात करें तो G क्या है, BD का मिड पॉइंट है. ओके, एंड FG इज पैरेलल थ्रू CD. सो बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, by converse of midpoint theorem we can say F bisect BC, or we can say F is midpoint of side BC. ओके, तो सबसे पहले ट्राइंगल ABD कंसीडर करना है जिसमें E मिड पॉइंट है AD का, और E से ये लाइन EF पास हो रही है. ठीक है, और वो क्या है, AB के पैरेलल है. EF AB के पैरेलल, इसका मतलब EG AB के पैरेलल होगा. तो यहाँ पर हम मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स यूज़ करेंगे. सो G क्या होगा, BD को बाइसेक्ट करेगा. ठीक है, अब इस ट्राइंगल में देखें BCD में तो क्या है, EF AB के पैरेलल, और AB किसके पैरेलल है, CD के. इसका मतलब ये होल लाइन EF इज पैरेलल टू CD. होल लाइन EF CD के पैरेलल, इसका मतलब ये पार्ट EF का मीन्स FG ये भी CD के पैरेलल होगा. और G पॉइंट से ही ये लाइन पास हो रही है, और G क्या है,
बी डी का मिड पॉइंट है। इसका मतलब अगर इस ट्राइंगल बी सी डी में हम मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स यूज करें कि मिड पॉइंट एक साइड के मिड पॉइंट से पास होने वाली लाइन जो कि थर्ड साइड के पैरेलल है, तो वो सेकंड साइड को क्या बाइसेक्ट करेगी, मींस एफ बाइसेक्ट बी सी। इसका मतलब एफ क्या है, बी सी का मिड पॉइंट। तो यही हमने शो किया है। Now question number 5 is in a parallelogram ABCD, E and F are the midpoints of sides AB and CD respectively. Show that the line segment AF and EC trisect the diagonal BD. Okay? So इस क्वेश्चन में आपको ABCD एक पैरेललोग्राम दिया है, तो पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होती हैं एंड एंगल्स भी ऑपोजिट इक्वल होते हैं। ठीक है, और क्या दे रखा है कि E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB एंड CD रेस्पेक्टिवली। E AB का मिड पॉइंट है, F CD का मिड पॉइंट है। ओके, एंड BD इज डायगोनल। सो इफ वी ज्वाइन F to A and E to C, so you are getting AF and EC. AF and EC. Then you have to show what these line segment AF and EC trisects BD. Means इस डायगोनल को ये लाइन सेगमेंट AF एंड EC ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, मीन्स 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ 3 पार्ट्स में तो डिवाइड हो रहे हैं, AF और EC मिलकर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, बट आपको ये शो करना है कि ट्राइसेक्ट मीन्स 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो इक्वल मीन्स हमें क्या शो करना है कि DP इज इक्वल्स टू PQ, PQ इज इक्वल्स टू QP। ओके, so we have to show here what DP is equals to PQ and PQ is equals to BQ. This. Okay. Now see, AB and CD are the opposite sides of parallelogram. Okay. And in parallelogram, opposite sides are equal as well as parallel. It means AB and CD are equal as well as parallel. So see, since AB is equal to CD and AB is parallel to CD. Okay, and E and F are midpoints of AB and CD. ये जो दो साइड ऑपोजिट इक्वल हैं उन्हीं के ही आपको मिड पॉइंट्स दे रखे हैं। इसका मतलब अगर AB और CD का हम हाफ लें तो वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, सो वी कैन राइट हाफ ऑफ AB इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ CD एज वेल एज हाफ ऑफ AB इफ वी टेक दैट विल पैरेलल टू हाफ ऑफ CD। ओके, ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं और इनके मिड पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। इसका मतलब इनका हाफ भी क्या होगा, इक्वल होगा और पैरेलल होगा। ठीक है, तो इसका यूज़ करके हम क्या लिख सकते हैं, अगर हाफ ऑफ AB हम एफसी लेते हैं, इसका मतलब क्या, अगर हम AB का हाफ, ये दोनों हाफ पार्ट क्या है, इक्वल हैं, तो हाफ ऑफ AC में से हम ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। तो अगर हाफ ऑफ AB अगर हम AE लेते हैं तो वो किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ CD। हाफ ऑफ CD इज DF एज वेल एज FC, बट वी आर टेकिंग हियर FC। Here also half of AB we take AE that is parallel to half of CD means FC। देखिए यहाँ पर A क्वाड्रिलेटरल AECF की अगर हम बात करते हैं तो AE FC के इक्वल और पैरेलल है, मीन्स इस क्वाड्रिलेटरल में एक ऑपोजिट साइड का पेयर इक्वल है और पैरेलल है। तो ये क्वाड्रिलेटरल आपका क्या हो जाएगा, AECF पैरेललोग्राम। ओके, that's why AECF is a parallelogram। ओके, AB हमें CD के इक्वल दे रखा है तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे और पैरेलल होंगे। तो अब अगर इनके हाफ की बात करते तो ये क्या है, AECF क्वाड्रिलेटरल की भी साइड्स हैं, ऑपोजिट साइड्स हैं ये हाफ। तो ये क्या है, ये साइड्स आपकी इक्वल हैं और पैरेलल हैं, तो ये आपका होल क्वाड्रिलेटरल AECF पैरेललोग्राम हो जाएगा। सो वी हैव रिटन हियर AECF इज अ पैरेललोग्राम। व्हाई, one pair of opposite sides
आर पैरेलल एंड इक्वल। ओके, अब देखिए ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल है, तो ये पैरेललोग्राम हो गया आपका। तो रिमेनिंग जो साइड्स हैं, रिमेनिंग जो एक पेयर है ऑपोजिट साइड्स का, वो भी क्या होगा, पैरेलल होगा। इसका मतलब ए एफ इज पैरेलल टू सी ई। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट ए एफ इज पैरेलल टू ई सी। ठीक है, ए एफ किसके पैरेलल है, ई सी के। अब देखिए अगर हम ट्राइंगल ए बी पी की बात करते हैं, ए बी पी, राइट, इन ट्राइंगल ए बी पी की बात करते हैं, तो देखिए ई क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है। ओके, और जो ई सी है वो किसके, ए एफ के पैरेलल है, तो इनके पार्ट्स भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। इसका मतलब ई क्यू किसके, ए पी के पैरेलल होगा। ठीक है, अब ई क्यू क्या है, ई मिड पॉइंट से पास हो रहा है और थर्ड साइड के पैरेलल है। इसका मतलब ई क्यू इस सेकेंड साइड बी पी को बाइसेक्ट करेगा बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। सी इन ट्राइंगल ए बी पी, यहाँ पर देखिए ए एफ हमने ई सी के पैरेलल किया। ठीक है, इसका मतलब ई क्यू इज पैरेलल टू ए पी। ठीक है, सो इन ट्राइंगल ए बी पी ई क्यू इज पैरेलल टू ए पी एंड ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ई क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी है और ई क्यू किसके पैरेलल है, ए पी के। तो इसका मतलब क्यू पॉइंट बी पी को बाइसेक्ट करेगा। सो बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, Q bisects BP. Q bisects BP. So this implies Q is the midpoint of BP. So we can write here, since Q bisects BP, it means BQ is equals to QP. Name this as equation number 1. क्या हमने शो कर दिया कि BQ किसके इक्वल है, PQ के। अब देखिए ट्राइंगल DCQ, इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं DCQ। सो राइट, DCQ की बात कर रहे हैं, तो देखिए ए एफ ई सी के पैरेलल है, ए एफ इज पैरेलल टू ई सी। सो इसका मतलब क्या है, इसके पार्ट अगर हम एफ पी लेते हैं, ये किसके पैरेलल होगा, क्यू सी के। ओके, सो इन ट्राइंगल डी क्यू सी, अगर डी क्यू सी की बात करें तो देखिए एफ पी और पी एफ इज पैरेलल टू क्यू सी एंड एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। ये तो हमें दिया ही हुआ है, सी डी। ठीक है, ये ऑलरेडी हमें गिवन है कि एफ क्या है, सी डी का मिड पॉइंट है। अब हम जो ट्राइंगल डी क्यू सी ले रहे हैं उसमें डी सी क्या है, इस ट्राइंगल की भी साइड है, तो ये मिड पॉइंट इस ट्राइंगल की साइड का भी होगा। तो देखिए एफ से मिड पॉइंट से एक लाइन पास हो रही है। ठीक है, और ये लाइन किसके, थर्ड साइड के पैरेलल है। इसका मतलब ये सेकंड साइड मीन्स डी क्यू को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। सो यूजिंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, P bisects DQ। P क्या है, DQ को बाइसेक्ट करेगा। कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम का क्या है कि इन अ ट्राइंगल इफ अ लाइन
pass through the midpoint of one side and it parallel to the third side, then it bisects the second side. ओके तो यहाँ पर एफ से क्या एफ पी पास हो रहा है और एफ पी किसके क्यू सी के पैरेलल है, इसका मतलब एफ पी डी क्यू को बाइसेक्ट करेगा. ओके सो पी बाइसेक्ट्स डी क्यू और यू कैन राइट एफ पी. ओके एफ पी बाइसेक्ट्स डी क्यू, सो इट इम्प्लाइज व्हाट डी पी इज इक्वल्स टू पी क्यू. ये एफ पी डी क्यू को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है. मीन्स डी पी किसके इक्वल होगा पी क्यू के. इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए. अब 1 और 2 को कंपेयर कीजिए. क्यू पी बी क्यू क्यू बी के भी इक्वल है और पी क्यू डी पी के भी इक्वल है. इसका मतलब तीनों साइड्स तीनों ये पार्ट्स आपस में इक्वल है. सो फ्रॉम 1 एंड 2 डी पी is equals to PQ is equals to QB. It means AF and EC trisects diagonal BD. Okay, AF and EC इस डायगोनल BD को ट्राइसेक्ट कर रहा है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, DP, PQ एंड QB. Okay, so that's all about today's session in which we have discussed question number 3, 4 and 5. Okay, if you have any query, doubt related to these questions, can ask on comment section, and in my next upcoming session we are going to discuss next further last 2 questions of this exercise. Till then keep watching my channel. Thank you.